Hello everyone, welcome back, and for those who are new here, my name is Aparna and I create hospitality training videos on my channel. Today's topic is practice English language. Hindi is our mother tongue and we are proud to talk to our friends and families in our mother tongue. However, knowing how to communicate in English is imperative for a hospitality personnel. Tourism industry allows travelers to go across the globe to explore. And to facilitate them and to extend hospitality, one should know English language. We are human and it is not possible for us to learn 7,151 spoken languages in the world. That is the reason English being the universal language, it becomes easier for the guest and for the employee to communicate, understand and express the view and the information. So without wasting time, let's get to the video, and by the end of this video, you will learn how to practice language English and how to use it in your daily routine. So this topic is by far my favorite because I remember those days how I learned to communicate in English and how it used to sound like a foreign language to me. So this training is based on how I have learned it. It might be beneficial for all of you. That's why I'm sharing the points, and I will also be sharing few points to practice it in your day-to-day life. So what are the fundamental areas of English communication? Are reading, writing, speaking, and listening. Now, all of you who are preparing for IELTS or have sat for IELTS once, IELTS is basically International English Language Test. आप सबको ये लग रहा होगा that this is going to be a regular IELTS training, like based on IELTS form. But no, it's a personal experience, and don't judge the book by its cover. This is a very simple yet effective training if you practice it. This training is a mix of my personal experience and also the idea to improve the chances of learning English. It is going to be very, different from regular classroom trainings. So let's start the same. First is reading. Okay. In reading, you can see there are few points written. So old school practice is basically what I used to do. I used to read a book of my interest. I used to read newspaper in English newspaper basically and English articles. तो ये सुनने में बहुत monotonous लगता है कि सभी ये बोलते हैं कि आप किताब पढ़िए या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़िए या फिर आप आर्टिकल्स पढ़िए. But what is the reason behind, right? When you read it from internet or when you read it from your phone or laptop, आपका कंसंट्रेशन हो सकता है थोड़ा इधर उधर चला जाए क्योंकि उसमें नोटिफिकेशंस आते हैं, या तो आप नोटिफिकेशन बंद करके हर तरह से फोन को के इंटरनेट को या नोटिफिकेशंस को बंद करके वो पढ़ रहे हैं या लैपटॉप में एड्स बंद करके वो पढ़ रहे हैं, तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा. बट इफ यू थिंक दैट looking at the screen for long might affect your eyes अगर आप रेगुलर बैठते नहीं है लैपटॉप या फोन पे. so the best thing is the old school practice. तो आप अपनी एक बुक सिलेक्ट कीजिए. it could be any book like novel or fiction or sci-fi, whatever you love to read, hear or study. ठीक है, तो आप ऐसा कुछ टॉपिक उठाइए. ठीक है, जैसे अगर मुझसे बात की जाएगी तो आई लव to read Vedic scriptures, right? So I will pick up a book of Vedic scripture. But make sure आप एक काम करें कि सबसे पहले आप बहुत पतली और छोटी किताब को सिलेक्ट करें. जो गलती मैंने की थी आप मत कीजिए. I picked up a huge, like it's a big book. I picked up that book during the days of my learning. तो मैंने बहुत मोटी किताब उठाई जिसके 10 पन्ने पढ़ने के बाद I lost interest because I could see कि मैंने सिर्फ 10 पन्ने पढ़े हैं और अभी कुछ 2 to 300 pages are left. So that does not give you confidence and the motivation. So I would always suggest that start a book of your interest जो कि थोड़ी कम पेजेस की हो, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा. If you'll complete a 50 pages का किताब या 100 पेज का किताब, you will be confident that, oh wow, I finished this book, I need to go to the market to buy the new one, right? So this is about reading book.
रीडिंग न्यूज़पेपर हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज फॉर ऑल दोज मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इफ यू आर सिटिंग, तो उसमें आपसे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, राइट? तो रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर कैन सॉल्व टू पर्पस। एक कि आप करंट अफेयर्स क्या हैं इंडिया में या वर्ल्ड में उसके बारे में आपको जानकारी है। दूसरा, आपकी रीडिंग पावर भी इम्प्रोवाइज हो रही है। तीसरा है रीड एन आर्टिकल। सो द आर्टिकल कुड बी ऑफ एनीथिंग विच यू लाइक टू रीड। आप बहुत ध्यान दीजिए इस बात पे कि आप कुछ इस तरह का आर्टिकल ना पढ़ें जो सब्जेक्ट या टॉपिक आपको इंटरेस्ट नहीं करता या आपके इंटरेस्ट का नहीं है। आई टेल यू द रीजन वाई। अगर आपने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से हट के कोई आर्टिकल पढ़ा, लेटर यू कैन डू दैट, आई एम नॉट डिनाइंग, बट इनिशियली व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग एंड लर्निंग, अगर आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से हटके आर्टिकल पढ़ेंगे, हो सकता है वो आपके इंटरेस्ट को कम कर दे इंग्लिश आर्टिकल्स पढ़ने में। दिस इज द रीजन, राइट? नेक्स्ट इज रीड आउट लाउड। इसका क्या रीजन हो सकता है? जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं उसे जोरों से पढ़िए अगर पॉसिबल है तो। ऑफ कोर्स इफ यू आर सिटिंग in a group of people, of course you cannot read it aloud, but if it is possible, if you are at home or at a place where there's no one around and you're not disturbing anybody, read it loud. इसका रीजन ये है because it will give you it will basically boost your confidence and you can even practice it in front of the mirror. आप मिरर के सामने जब प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपको और बूस्ट मिलेगा, क्योंकि आप अपने आप को देख सकते हैं that how you basically look when you talk in English. तो वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, तो उससे आपको पता चलेगा आपके एक्सप्रेशंस क्या आ रहे हैं। जब आप कोई सैड बात कर रहे हैं तो उसके साथ एक्सप्रेशन कैसे हैं, जब आप स्माइल लाइक कोई हैप्पी इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं तो उसके लिए आपके एक्सप्रेशन कैसे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड रीडिंग अलाउड टू बेसिकली प्रैक्टिस। अभी लास्ट पॉइंट है लेटेस्ट रीडिंग मेथड, जिसमें है स्क्रीन मेथड, जिसमें आप फोन पे भी पढ़ सकते हैं और लैपटॉप पे भी पढ़ सकते हैं इफ यू विश सो। बट वही है कि उसमें आप अपने नोटिफिकेशंस, एड्स, सब कुछ बंद कीजिए, फोन कॉल्स वगैरह, उसके बाद पढ़िए, सो दैट आपका जो कॉन्टिन्यूटी है वो नहीं टूटेगा। लेट्स मूव फर्दर। राइटिंग, ओके। स्टार्ट विद राइटिंग योर डेली जर्नल। आपको राइटिंग में कुछ नहीं करना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। आप दिन खत्म होने के बाद सोने से पहले अपने स्टडी पे बैठिए, अपनी जर्नल खोलिए, पेन लीजिए और उसमें लिखना शुरू कीजिए कि आज का दिन आपका कैसा गया, what were the learnings and what are the area of improvement which you're not going to repeat the mistakes। तो वो लिखेंगे, आपको मजा आएगा, राइट? मेक योर टू डू डेली टू डू लिस्ट ऑल्सो। जैसे कि आप शिफ्ट पे जा रहे हैं तो आप सबसे पहले तो ब्रीफिंग पॉइंट्स लिखिए इंग्लिश में, उसके बाद में अपनी टू डू लिस्ट लिखिए कि आज मेरे ये 10 टास्क हैं, बिफोर आई लीव फ्रॉम वर्क आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क एंड स्क्रिबल इट ऑफ वंस इट इज डन, राइट? टू डू लिस्ट कैन बी इन नोटपैड एंड ऑन सिस्टम ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सिस्टम पे काम करते हैं उन लोगों के लिए टू डू लिस्ट जो नोटपैड हमारे कंप्यूटर्स में होता है उस पर भी काम करेगी, राइट? But writing it on a diary and scribbling it off gives you a different kind of energy कि आपने इतना काम खत्म कर दिया, आपको वो स्ट्राइक दिखेगा तो आपको मजा आएगा। सो वो आदत डालिए लिखने की, क्योंकि जब तक लिखने की आदत नहीं डालेंगे आपकी बोलने की आदत भी नहीं आएगी। चूज अ टॉपिक वेयर यू फाउंड डिफिकल्टी कम्युनिकेटिंग ड्यूरिंग द डे। आपको ऐसा लगा कि आज एक कोई पर्टिकुलर मोमेंट पे या टॉपिक पे मैं नहीं बोल पा रहा था या मैं नहीं बोल पा रही थी, तो आप उस टॉपिक के बारे में लिखिए। because when you write you're not the speed of speaking and writing are different। आप जब बोलते हैं तो आपके पास बहुत समय नहीं होता है सोचने का that आपको क्या बोलना है, बट जब आप लिख रहे होते हैं आपका दिमाग आपको बहुत सारे अच्छे वर्ड्स बताता है, राइट? तो आप उस डिफिकल्ट कम्युनिकेशन जो आपने आज किया है, जिसमें आपको लगा इसमें मैं और इम्प्रूव कर सकता था, उससे लिखिए। बिकॉज आप जब उसे लिखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप कितना अच्छा इसको आंसर कर सकते थे। रीड इट लाउड टू सी हाउ यू हैव रिटन। अब रीडिंग लाउड तो लिसनिंग में आ जाएगा, बट ऑल दीज 4 बेसिक फंडामेंटल एरियाज जो कि है लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग, ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। तो आप जब अपना लिखा हुआ टॉपिक जिसमें आपको कम्युनिकेट करने में डिफिकल्टी होती है उसे जोर से पढ़ेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ओ वाओ, मैंने ये इतनी सिंपल तरीके से आज जवाब दिया दिन में और मैं उसे इतना खूबसूरती से भी लिख सकता हूँ और बोल सकता हूँ। Check for the area of improvement for better vocabulary.
अब जब हम वोकेबलरी पे आते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम देखें कि हम क्या वर्ड सिलेक्ट करें। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, है ना, हम हमेशा बोलते हैं ओके, श्योर, ये वर्ड्स तो हम सबको पता है। लाइक इफ वी विल रिप्लेस दीज वर्ड्स विथ सर्टेनली, हाउ डज इट साउंड? Would you mind doing this job for me? Most certainly. I will finish this. Certainly. I'll do the needful. अच्छा लग रहा है ना सुनने में? तो आप सिंपल वर्ड्स को अच्छी वोकेबलरी के साथ स्विच कीजिए। अगर आपको बोला जा रहा है ओके आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताइए, आई हैव मेनी एक्टिविटीज टू डू ड्यूरिंग द डे, इंस्टेड ऑफ दैट यू से आई हैव प्लेथोरा एक्टिविटीज। तो प्लेथोरा का मतलब है बहुत सारी, राइट? तो ये अच्छा लग रहा है सुनने में। आपने बचपन से बोला एक शब्द तो ये हम सबको आता है, आई एम सॉरी, आई हैव डन दिस, सॉरी सॉरी सॉरी, बट इंस्टेड ऑफ सॉरी आई अपोलोजाइज। कैसा लग रहा है सुनने में? पॉलिश्ड लग रहा है, आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा लगेगा कि आप अच्छी तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू हमने सब जगह सुना है, लेकिन उसकी जगह स्विच इट टू माई प्लेजर। कैसा लगा सुनने में? तो इसी तरह से आपको कुछ वर्ड्स डिक्शनरी या गूगल से ढूंढने पड़ेंगे जो कि आप डेली यूज होने वाले, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है आपकी बात करने के टाइम पर, उस शब्द को आप चेंज करके इससे रिप्लेस कीजिए। नाउ हाउ टू प्रैक्टिस इट इन टॉकिंग आगे आएगा। वंस यू स्टार्ट राइटिंग न्यू वोकेबलरी, जैसा अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट ड्यूरिंग कम्युनिकेटिंग विद अदर पीपल। आपने लेट्स अज्यूम आज आपने माय अपॉलजी लिख के कोशिश कर लिया एक बार। नाउ फ्रॉम टुमारो मेक श्योर वेर एवर यू सेइंग सॉरी यू रिप्लेस इट विद माय अपॉलजी, ठीक है? चैट इन इंग्लिश आजकल सबसे इजी तरीका है राइटिंग का कि हम सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स फैमिली को चैटिंग करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। मेक श्योर यू डू नॉट यूज रोमन हिंदी विच इज रोमनागरी। देर इज नो वर्ड कॉल्ड रोमनागरी, बट आजकल के जो ब्लॉगर्स हैं उन्होंने ये जार्गन वर्ड बनाया है। रोमनागरी इज वर्ड बेसिकली व्हेन यू राइट हिंदी टेक्स्ट इन इंग्लिश फॉर्म, कि क्या कर रहे हो, तो KYA, क्या KAR, कर, इस तरह से आप लिखते हैं, इसे रोमन हिंदी बोला जाता है। तो try not to write in Roman Hindi and write in proper English, ठीक है? That will give you confidence, that will also set your better uh, you can say आपका अच्छे से अच्छा impression बनेगा सामने वाले पे, right? I'm sure you're clear till here. Now comes speaking. Speaking is the only important part जब तक आप उसे प्रैक्टिस 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 करें। इंग्लिश को बोलने का तरीका है प्रैक्टिस करना, दैट्स इट। इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है इसकी स्पीकिंग में। सो बी कॉन्फिडेंट एंड स्पीक एज ऑफन एज पॉसिबल टू एज many people as you possibly can. Do not be shy to make mistake because mistakes आपसे होंगी जब आप इनिशियली बोल रहे हैं। The more you practice, the better and more confident you will become in your pronunciation and vocabulary. तो vocabulary हमने अभी अभी देखा कि आप vocabulary अच्छी कर सकते हैं, एक दिन पहले उसे रात को लिखिए, है ना? तो जब आप लिख लेंगे तो वो आपको रजिस्टर हो जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि पहले राइटिंग में उससे प्रैक्टिस कीजिए, राइट? अब प्रोनाउंसिएशन, तो आप प्रोनाउंसिएशन का क्या कर सकते हैं कि आपको अगर लगता है कि कोई बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग इंग्लिश बोलता है, ठीक है, जो आपको इंस्पायर करता है आपके अराउंड, चाहे वो आपके मैनेजर हो, सबॉर्डिनेट हो, आपके घर का कोई मेंबर हो, आप उनसे प्रोनाउंसिएशन पूछिए किसी चीज का। जैसे मैंने जब ये इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तो बीइंग फ्रॉम अ हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, देयर वर लॉट ऑफ वर्ड्स जो मुझे प्रोनाउंस करने नहीं आते थे, राइट? तो आई यूज्ड टू अप्रोच टू माय सुपरवाइजर्स बिकॉज इट वाज लॉन्ग बैक इन 2007 when social media and internet was not user friendly for everybody. It was there but हमें इतना यूज करना आता नहीं था। So my way was to approach people to ask that मैं ये सही pronounce कर रही हूँ या नहीं। But for you guys it becomes all the more easier because you have Google Translate and different apps also जो आपको translate करने में या
बेसिकली प्रोनाउंस करने में हेल्प करते हैं। तो आप जब गूगल ट्रांसलेट पे जाएंगे, इट विल आस्क यू फॉर अ वर्ड, आप उसे वर्ड लिखिए, उसका हिंदी मीनिंग आएगा, आप हिंदी में सेट कीजिए, एक इंग्लिश और एक हिंदी। इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में उसका मतलब क्या है, तो आपको उसका मतलब भी पता चल जाएगा। और नीचे एक छोटा सा स्पीकर का लाउड स्पीकर का बटन होगा, आप उसे क्लिक करेंगे, सो इट विल एक्चुअली टेल यू कि कैसे इसको प्रोनाउंस करना है। सो इट्स वेरी सिंपल। तो आप दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, ईदर यू अप्रोच टू द पर्सन जो आपको इंस्पायर करता है इंग्लिश बोलने के लिए, और या फिर आप गूगल ट्रांसलेट में उसका प्रोनाउंसिएशन चेक कीजिए। हैव अ डिबेट, debate all the topics that interest you with friends in English. Try to use as much vocabulary as you can to get your point across. कोई ऐसा टॉपिक लीजिए जिसपे आपको लगता है कि वाओ, माय फ्रेंड्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक एंड दे लुक वेरी cool when they talk about these topics in the hotel, about anything related to hotel industry. तो वो टॉपिक लीजिए, उस पे एक रात पहले प्रैक्टिस कीजिए, एंड देन अगले दिन अपने फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट कीजिए कि चलो मेरे को प्रैक्टिस करनी है, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक। तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा क्योंकि आपने वो चीज प्रैक्टिस की। ऑफ कोर्स जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे तो आपको हर चीज एक रात पहले प्रैक्टिस करने नहीं मिलेगी, बिकॉज दैट विल बी मोमेंट ऑफ ट्रूथ, but to learn this is a very good practice. Now comes listening. What listening does to you basically, right? Listening से आपकी रिटेनिंग पावर जो है कि आपने जो सुना, आपने वो कैप्चर किया, आपको वो याद रहा, आपने उसे राइटिंग के दौरान लिख के एक बार कंठस्थ कर लिया, एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट डे यू आर स्पीकिंग, आई मीन स्पीकिंग में आ गए आप और उसको यूज कर रहे हैं डेली कम्युनिकेशन में। लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग्स विद सबटाइटल एंड लर्न। मैंने अपनी लाइफ में इंग्लिश कैसे सीखा था, बेसिक चीज जो थी कि मुझे इंग्लिश सॉन्ग सुनना तो बड़ा पसंद था, लेकिन होता है ना उन बच्चों के बारे में आपने सुना होगा, आई वाज जस्ट 17 व्हेन आई जॉइंड द ट्रेनिंग इन दिस इंडस्ट्री। तो उन बच्चों के बारे में सुना होगा जिन्हें म्यूजिक तो याद है अकॉन का या रेहाना का, बट दे कैन नॉट सिंग बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे सिंगिंग। इंग्लिश सॉन्ग्स जो होते हैं वो इतनी जल्दी गाए जाते हैं कि आपको समझ नहीं आता है कि आपको क्या गाना है, राइट? सो आई यूज टू, जैसे बोलते हैं ना, हमिंग करती थी म्यूजिक के लिए। तो मैंने सोचा जब मैं म्यूजिक गा ही रही हूँ, मुझे इतना पसंद है, तो मैंने सबटाइटल्स देखकर इंटरनेट पे उसे लिखना शुरू किया, एक पेन और पेपर लेकर उस पर लिखना, क्योंकि उस जमाने में इतना इजी नहीं था हर चीज। सो आई रोट डाउन द एंटायर सॉन्ग एंड देन आई यूज टू मेमोराइज द सॉन्ग ऑन माई डे ऑफ, कान में लगा के, क्योंकि रेडियो या गाने तो हमारे फोन में चलते ही थे, तो कान में लगाकर, एंड आई यूज टू लिसन टू दैट सॉन्ग, एंड साथ साथ में मेरे पास वो पेपर होता था जिससे मैं पढ़ के वो गाना गाती थी। जब मुझे वो गाने याद हो गए और मुझे कंठस्थ हो गए, it actually boosted my confidence to the next level. Try this will work for you also. Next point is watch films. आपने जरूर सुना होगा आपके ग्रुप में there must be few people who are die hard fan of Marvels और DC की मूवीज हुई, या फिर फ्रेंड्स जो कि एक पहले शो आता था, या किसी भी तरह की सीरीज हो जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स और समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट वेरी गुड एट सीरीज एंड ऑल, तो वो मुझे बहुत नहीं पता। तो आप वो देखिए और उसका सब टाइटल ऑन कीजिए। अब कभी कभी क्या होता है, आपको लगता है आप किसी मतलब आप कोई सेंटेंस बिल्कुल ठीक तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन जब आप इस तरह की मूवीज देखते हैं, उनके एक्सप्रेशन के साथ उनके सबटाइटल को पढ़ते हैं, तो आपको लगता है ओ वाओ, मैं इसको इस तरह से बोलता था लेकिन इसे इस तरह से बोलने में ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आप उससे वो चीज सीखेंगे, राइट? क्योंकि वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आपको मूवीज पसंद आ रही है, आपको जानने का की उत्सुकता है कि मार्वल से डीसी के कैरेक्टर व्हाट दे आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, तो आप वो पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है? Next is listen to the news bulletin in English. You can also learn new words and expressions this way. तो वही है, more you listen, the more you learn. तो ये आपने आई एम श्योर सारा सुना चारों पॉइंट्स के बारे में। नाउ प्रैक्टिस के लिए हमें क्या करना है? सो प्रैक्टिस आइडिया में है, थिंक इन इंग्लिश, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड टॉक टू योरसेल्फ, ये मैंने आपको बताया। रीड एटलीस्ट वन आर्टिकल एवरी डे टू करंट अफेयर्स एंड टॉक टू पीपल अबाउट इट। ठीक है, करंट अफेयर्स के बारे में आप लीजिए, अगर आपको पॉलिटिक्स इंटरेस्टिंग लगता है आप वो लीजिए, अगर आपको अपना एरिया ऑफ लाइक जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं वो अच्छा लगता है तो उसका टॉपिक लीजिए और उसके बारे में आप लोगों से बात कीजिए, क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस्ड टॉपिक है, तो उसमें आप और कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे। जब कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे आपको बाहर से एप्रिसिएशन मिलेगा, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस फर्दर, एंड देन ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे आप सीखेंगे। If you think you didn't understand something, either ask, check,
और चेक डिक्शनरी और गूगल पे आप देख सकते हैं, ठीक है। टॉक टू पीपल इन इंग्लिश ओवर द फोन हु स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। अपने दोस्तों से या घर वालों से जिन्हें आपको लगता है इंग्लिश आती है, अच्छी बोलते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आप मुझसे फोन पर सिर्फ इंग्लिश में ही बात करेंगे। वॉच, लिसन, राइट एंड कम्युनिकेट इन इंग्लिश। Encourage people to talk in English so that we all can speak English। तो हमें एक कल्चर, एक एनवायरमेंट क्रिएट करना है जिससे हम सुन रहे हैं इन इंग्लिश, हम गा रहे हैं इन इंग्लिश, हम लिख रहे हैं इन इंग्लिश, हम बोल रहे हैं इन इंग्लिश, ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं इन इंग्लिश। जब आप ये करेंगे आपको एनकरेजमेंट मिलेगी। मेक फ्रेंड्स विद इंग्लिश स्पीकर्स। टॉक अबाउट थिंग्स दैट यू हैव लर्नड एंड एक्सचेंज आइडियाज। आपने जो भी लर्न किया वो एक्सचेंज कीजिए, अच्छा लगेगा। चैट विद पीपल इन इंग्लिश, ये हमने बात कर ली। टेक एनी इंटरेस्टिंग सेशन जो आपको अच्छा लगता है, वो कुकरी सेशन हो सकता है, इंग्लिश लाइक बुक क्लब हो सकता है, या कोई भी एक्टिविटी हो सकती है जिसमें आप कम्युनिकेट कर सके अपने एक्सप्रेशंस एंड एक्सपीरियंस को। सो दिस इज हाउ यू विल learn English. Practice, practice, practice. Do not hesitate and do it in front of the mirror, and followed by this practice आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ट्राई कीजिए एंड फाइनली गेस्ट के साथ ट्राई कीजिए। ऑल द बेस्ट। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बूझो तो जाने। क्या आपको पता है कि होटल्स में 12 बजे के, दोपहर के 12 बजे के चेकआउट क्यों किया जाता है? अगर पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो शॉर्ट्स देखिए। I'm sure now you know the tips how to communicate in English, so do not hesitate and practice. Thank you for watching. If you have any question, comment below. See you next time.